Good morning, students. Today we are on the lecture 3 for on alkane hydrocarbon. Right? And this chapter name, I'm sorry, I did not remove. The chapter name is hydrocarbon, and our topic is alkane hydrocarbon. And third lecture on it we are going to discuss here. Okay. Right. Alkane hydrocarbon. We have in first part we had discussed conformation and alkane. The second part we had discussed the preparation of alkanes. Now in this part we are going to discuss that physical and chemical properties of alkanes. Right. So in physical properties, initially we can say we know very well that alkanes are almost non-polar, right? So there is no force of attraction. It is assumed that there is no force of attraction in the molecules, but there is van der Waals force of attraction, generally London or dispersion type, operate between the molecules, and that's why as molecular mass increase, their boiling points and melting points increase. जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा उनमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स जैसे सरफेस एरिया बढ़ते हैं तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ते हैं. राइट. इसके बाद अगर हम देखें, राइट, फर्स्ट 4 मेंबर्स फ्रॉम C1 to C4 आर गैसेस, C5 to C17 आर लिक्विड्स, एंड C8 दोज कंटेनिंग C18 प्लस जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं. C1 से C4 दैट यू नो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? गैस होते हैं. ब्यूटेन गैस LPG के फॉर्म में हमारे घरों में मिलता है. C5 to C17 आर लिक्विड्स. इन इट पेट्रोलियम विच इज अराउंड C7 C8, kerosene which is around C11 C12, and diesel which is around C14 or C13. And C18 and above like paraffin, wax जो होता है, that is included into it, and they are solids. As I had already mentioned that aliphatics are smellless, so they are colorless and odorless. Like dissolve like, that you know very well, that we know, so they are non-polar, so they dissolve in non-polar solvents if required. Even sometimes they act as a solvent also, right? And they are insoluble in polar solvent like water, alcohol, ammonia like him. About boiling points, as we know, as I already said, that as molecular mass increase, boiling point increase. Right? You can see here the examples for boiling point already given here. But in isomers, initially simply we can say कि as molecular mass increase, boiling point increase. Why it is so? Because as molecular mass increase, that surface area increase, molecule का size obviously बड़ा हो जाएगा, तो surface area बड़ा हो जाएगा, और जैसे जैसे surface area बड़ा होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. राइट. इसी तरह से बट व्हाट अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास? एल्केन्स की हम बात करें, उनका सेम मॉलिक्यूलर मास होगा. सो इन दैट कंडीशन सरफेस एरिया अगेन रिमेन इन द पिक्चर, एंड इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, द स्ट्रेट चेन कार, फॉर एग्जाम्पल वी हैव पेंटेन, राइट? वी हैव पेंटेन C5H12, right? So CH3 CH2 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 CH3, right? So in that case another is CH3 CH3 CH2 CH3, and the last one is CH3 CH3 and CH3, isn't it? So in this condition you can see
there is a straight chain, this is branched, and this is again a ring icon, small, again a branching is there, extensive branching is there. So surface area, according to surface area we can see in this case, surface area के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इस केस में सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं सेम मॉलिक्यूलर मास में, तो जो अनब्रांच्ड होते हैं, जो स्ट्रेट चेन होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो देन ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। ठीक है, यू कैन सी हेयर एग्जाम्पल्स ऑफ इट ऑल्सो, लाइक इन पेंटेन यू कैन से 143.3, 2-methyl butane, 2-methyl butane you can see 300.9, and 2,2-dimethyl propane. What are the IUPAC names of this compounds? This is pentane, this is 2-methyl butane, this is 2,2-dimethyl propane, right? ये तीनों ही है वो चीजें। So you can see here examples also. तो आप इस से याद भी रख सकते हैं आसानी से। बाकी तरीका मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए कि और कम हो गया 282.5, राइट। बट जैसे ही हेक्सेन में आएगा देखिए बढ़ गया, क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ गए, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली जब मेल्टिंग पॉइंट की बात होती है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, वहां उतना इशू नहीं है। द पॉइंट इज if we are talking about the various isomers, in that case more symmetric will have higher melting point, because what happens in case of melting point, remember in melting point it is required packing, solidify करना है ना हमने को, तो solid बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पैक करना होगा। अब आपको अपने बैग पैक करने होते हैं तो कपड़ों को प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ठूस दें उठा के तो कपड़े कम आएंगे, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे तो ज़्यादा कपड़े हम रख सकते हैं, ज़्यादा सामान हम रख सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज इन ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट, ड्यूरिंग मेल्टिंग और फ्रीजिंग, दे नीड टू need to be packed, right? So that's why a proper symmetry is necessary. You can see agar we have these three examples, so this is symmetric, this is symmetric, but this is not symmetric. थर्ड और फर्स्ट जो है सिमेट्रिक है, थर्ड इज मोर सिमेट्रिक। तो अगर हम इसके जो है वो मेल्टिंग पॉइंट्स को चेक करें, यू कैन सी 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट 256.5 होता है, 4 होता है। 2-मिथाइल ब्यूटेन का देखिए और पेंटेन का देखिए, मतलब टर्सरी यानी एक्सटेंसिव ब्रांचिंग जिसमें थी, फिर उसके बाद स्ट्रेट चेन और उसके बाद जो है सेकंड आया। इसका सीधा सा मतलब होता है जहां सिमेट्री जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे आइसोमर्स में, इजंट इट। और अगर कार्बन नंबर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, कार्बन नंबर चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो जनरल जो है वो चेंज बढ़ता जाएगा। अब इसमें ये होने के कारण से हो गया, अदरवाइज जो स्ट्रेट चेन के हिसाब से देखें तो हेक्सेन का ज़्यादा है पेंटेन से, देन हेप्टेन, देन ऑक्टेन, यू कैन सी हियर, राइट। सो दिस इज these are some physical properties of alkanes, right? Here we are with the preparation of alkane and with the chemical properties of alkanes, and in these chemical properties we are going to discuss some important properties. The first is called substitution reaction. First chemical property is termed as substitution reaction. Substitution reaction, or specifically free radical substitution reaction, as I already mentioned in the last chapter, are characteristics reactions of alkanes, right? Here we are with the substitution reactions of alkanes. So what happened in alkanes, remember, in alkanes the first important substitution reaction is halogenation. What happened in halogenation then? In halogenation, like CH4 plus Cl2 in presence of sunlight will give CH3, Cl and HCl. This is a perfect example of
substitution reaction in alkane, where one hydrogen is substituted by chlorine and convert into CH3Cl. Let CH3CH2H in a compound, and X2, that is most reactive is F2, then Cl2, then Br2, then I2. And here the tertiary will be most reactive, then secondary, then primary. And here X, one X removed with H and other X remain here. So the compound will be CH3CH2X and HX. Isn't it? So this is halogenation. Now as we know sunlight मैंने यहाँ mention किया, so fluorination, this is halogenation. So with fluorine it is fluorination, with chlorine it is chlorination, with bromine it is bromination, with iodine it is iodination. In fluorination what will happen? First let's see. In fluorination, fluorine is highly reactive, and in this case what will happen? After the reaction very huge amount of energy is liberated, which is may decompose or even burn the compound formed or product formed in the reaction. That's why fluoroalkane cannot be prepared by this reaction. Fluorination may occur in dark. It means for fluorination we don't need we would not need that sunlight for fluorination. It occur in dark also. It may occur in dark also. Chlorination required that diffused light, I can say. थोड़ी देर के लिए लाइट चाहिए, फिर नहीं चाहिए, फिर चाहिए. लाइट चाहिए है, थोड़ी डिफ्यूज्ड भी चलेगी, कोई बात नहीं. सनलाइट होगी तो रिएक्शन अच्छा हो जाएगा. एंड क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड. ब्रोमिनेशन रिक्वायर्ड कंटिन्यूस लाइट. ब्रोमिनेशन के लिए कंटिन्यूस लाइट की जरूरत होती है. बट क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज सिग्निफिकेंट हैलोजनेशन, आई कैन से, है नहीं. समझ में आ रही बात. क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो हैलोजनेशन, यानी आप क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन इस मेथड से काफी सिग्निफिकेंटली बना सकते हो. बट आयोडोएल्केन, अगेन आयोडोएल्केन इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस. आयोडोएल्केन में क्या होता है, प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है. इवन इतनी स्लो हो जाती है कि रिएक्शन रिवर्स भी होने लगता है. CH3CH2 और यहाँ पर आपने H लिया और यहाँ I2 लिया. In that condition what will happen in the product? CH3CH2I or HI, and very slow reaction it is. Or in this condition what will happen? This HI this carbon iodine bond, carbon size of carbon is small and size of iodine is very large. That's why this bond, carbon iodine bond, is very weak. And HI, that you know very well, down the group, acidic nature जो होता है किसी भी ग्रुप में आप जाते हैं, हाइड्राइड्स का acidic nature जो होता है वो increase होता है. It easily gives H plus also. So in this condition what will happen? This HI may reverse the reaction, क्योंकि reaction slow भी काफी होता है ना. तो this HI may reverse the reaction and that's why ये वापस बन जाएगा. सो टू स्टॉप इट, इसमें क्या करते हैं, कुछ HiO3 या HNO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाते हैं, जैसे I2 और H2O में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि फर्दर रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाता है. राइट. लेकिन फिर भी अल्टीमेटली दिस इज अगेन नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन. राइट. सो फ्लोरोएल्केन एंड आयोडोएल्केन generally do not prepared by this is not prepared by this method. Generally is not prepared by this method. Right. Chlorination and bromination is more specific for halogenation. This is first important thing that I need to discuss with you regarding substitution reaction. Right. Now the second point is the mechanism of
this reaction, mechanism of this reaction, mechanism of free radical substitution reaction, right? So in this mechanism, this mechanism is called free radical mechanism. The name of this mechanism is free radical mechanism, and this mechanism is complete in 3 steps. One step is called initiation. One step is called initiation. In initiation, let's halogen for example. In initiation, halogen in sunlight break down homolytically and form free radicals. Halogen free radical. Right? In the second step, in initiation step, the halogen break down into halogen free radical. The second step is called propagation. Chain propagation. This is called chain initiation. It is called chain propagation. Chain reactions are those photochemical reactions. Photochemical reactions are those reactions in which chemical reaction initiated or completed, or chemical reaction influenced by light, sunlight. So chain reactions are those reactions in which some photons may initiate the reaction and can turn thousands of reactant into product. Such reactions are called chain reactions. ऐसे रिएक्शन जिसमें एक फोटोन से बहुत सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे रिएक्शंस को, और ऐसे रिएक्शंस को हम चेन रिएक्शन कहते हैं, राइट? एक के बाद रिएक्शन होता जाता है. तो चेन प्रोपोगेशन में व्हाट हैपन, लेट्स CH3 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज और इसके बारे में बतानी, तो आई एम टेकिंग CH3 CH2 एंड H, राइट? And with X free radical it will convert into, so this H and X combine and form a compound, and a CH3 CH2 free radical is formed and HX is formed here. And the second step, what will happen the second step then? CH3 CH2 free radical plus, now X2 combine here and convert into CH3 CH2X and X free radical again. तो एक बार इनिशिएशन के लिए सनलाइट चाहिए होती है, देखिए उसके बाद स्टेप्स अपने आप आगे बढ़ते रहता है, राइट? यस और नो? इन द सेकेंड कंडीशन, इन द थर्ड स्टेप, ये स्टेप जो हमने अभी देखा ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा, है ना? ये रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूसली ये स्टेप चलते रहेगा, ठीक है? इसके बाद इसमें हम एक फिर वही सारी प्रोसेस अगेन, X फ्री रेडिकल आ गया. दिस X फ्री रेडिकल अगेन विल कंबाइन विथ CH3 CH2H and X free radical will turn into CH3 CH2 free radical and HX, and then CH3 CH2 free radical and plus X2 CH3 CH2X and HX. This reaction proceed continuously, propagate continuously, but after consumption of one of the reactant, either it is X2 or alkane, right? A third step will start, and that is called chain termination step. Third step is termed as chain termination step. And what happened in chain termination then? In chain termination step, what happened? There are two conditions may occur in chain termination. One is called, either it is dimerization. Generally it may occur also with the carbon the alkane having one carbon. But if alkane having more than one carbon, in that case there would be two steps. एक ही स्टेप डायमराइजेशन होगा जब एल्केन में केवल एक कार्बन हो गया, यानी फॉर मीथेन. बाकी सब के लिए एक से ज्यादा स्टेप हो सकते हैं चेन टर्मिनेशन के लिए. तो डायमराइजेशन में क्या होगा, लेट कि अगर आपके पास CH3 CH2 ज्यादा है और उसके फ्री रेडिकल्स भी ज्यादा बचेंगे, तो वो क्या होंगे, आपस में कंबाइन होकर विल फॉर्म ब्यूटेन. CH3 CH2
CH2 CH3. If X is there in excess, in that case यानी excess reagent X है तो will turn into X2. Yes or no? So this may occur, or disproportionation. Disproportionation means the same reactant is oxidized as well as product. So in that case you can see CH3 CH2 free radical, two molecules is there, so it oxidizes, it means lose one hydrogen and convert into CH2 double bond CH2 and H free radical lose कर देगा. एंड इन अनदर केस अगर हम कहें कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट होकर या ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 CH3. सो डिस्प्रोपोर्शनेशन, द मीनिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन इज the same atom in a reactant will oxidize and reduce from the same oxidation state. एक ही एलिमेंट अगर अपन बात कर रहे हैं किसी रिएक्टेंट में, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, तब उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन. रेडॉक्स चैप्टर हमारा नहीं हुआ है, नहीं तो हम डेफिनेटली उसको भी पढ़ रहे होते, या ये हमें समझ में आ गया होता. बट दो कंडीशन इसमें टेन टर्मिनेशन में देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए देखा गया है. और हाउ इट इज एनालाइज्ड कि ऐसा होता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. अगर हम CH3 CH2 ईथेन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट इज ऑब्जर्व कि कुछ वहां पर ब्यूटेन भी है, कुछ वहां पर ईथीन भी है और कुछ वहां पर ईथेन भी है. तो ये इससे पता चलता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, डायमराइजेशन भी देखने को मिलता है. सो दिस इज माय सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग हैलोजनेशन. नाउ आई एम कमिंग ऑन माय थर्ड पॉइंट regarding halogenation. In third point, actually what happened in case of CH3, there is CH3 or H, it means CH4, or in CH3 CH3 there is only one type of hydrogen, so the only one product is formed. But sometimes what happens if there is more than one type of hydrogen. Type of hydrogen means कि अगर हम हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हैलोजन लगा रहे हैं तो वी वुड गेट टू डिफरेंट कंपाउंड. वी शुड गेट टू डिफरेंट कंपाउंड. इट मींस देयर इज टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन. इन दीज केसेस एक ही कंपाउंड मिलेगा अगर आप एक हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन लगाते हैं तो. फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू कैन सी CH3 CH2 CH3. सो इन दिस केस अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट. सो वन प्रोडक्ट इज दिस and another product is this. yes or no? इसका मतलब आपने एक हाइड्रोजन यहाँ हटा के Cl जोड़ दिए तो एक प्रोडक्ट हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हटा के Cl जोड़ दूसरा प्रोडक्ट हो गया. अगर हम एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ प्रोडक्ट Cl जोड़ देंगे तो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो पहले जैसा ही हो जाएगा. हाँ या ना? सो दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट. टाइप्स ऑफ मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट. yes or no? तो टाइप्स ऑफ मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट मतलब कितने प्रोडक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स द टाइप ऑफ हाइड्रोजन. एंड हाउ कैन वी फाइंड द टाइप ऑफ हाइड्रोजन? सो फॉर इट वी नीड टू नो हाउ मेनी प्रोडक्ट वी कैन ड्रॉ, वी कैन फॉर्म बाय द कंपाउंड ऑन एडिंग Cl. आज जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, CH3 CH2 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 CH3. So in that case, how many product you can draw? How many product you can find? So in case of sunlight, when chlorine react, right? So pause कर दीजिए वीडियो को और एक मिनट खुद फाइंड करके बताइए, चेक कर लीजिए, है ना. Now, so I'm showing कि यहाँ पर एक Cl आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा एक कंपाउंड, यहाँ पर भी Cl जोड़ेंगे तो दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा, यहाँ पर भी Cl जोड़ेंगे तो आपको तीन कंपाउंड अलग मिल जाएंगे. लेकिन जब आप यहाँ ऐड करेंगे Cl तो ये इसके जैसा ही हो जाएगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो इसके जैसा ही हो जाएगा. मतलब आपको टोटल कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं? CH3 CH2 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 plus CH2Cl first, and then CH3 CH2 CH2 CHCl and CH3 second, and then
CH3 CH2 CHCl CH2 CH3 third, yes or no? 3 product you may get in this reaction then. Okay, similarly, how many product we could get in this CH3 CH CH3 CH2 CH3, right? So in this how many product you could get? तो you can see कि अगर आप यहाँ एक Cl रखेंगे हाइड्रोजन हटाकर तो एक कंपाउंड बन जाएगा, एक यहाँ पर बन सकता है, एक यहाँ पर बन सकता है, और एक यहाँ में से दोनों में से किसी एक पर रखेंगे तो बनेगा. इट मीन्स वी कुड गेट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, CH2 CH CH3. यू कैन राइट IUPAC नेम ऑल्सो, तो आपको डिफरेंट IUPAC नेम मिलेंगे. तो इसमें 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं. तो आप ये चेक करने के लिए आपको यही देखना होगा कि कितने डिफरेंट क्लोरीन हम ऐड कर सकते हैं, कितने डिफरेंट पोजीशंस पे हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं. CH3C, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3 हो सकता है, एंड हेयर इज CH2 CH3 देन. इसी तरीके से CH3 CH CH3 एंड देन CH और यहाँ पे Cl हो सकता है और यहाँ पे CH3 हो सकता है, एंड आफ्टरवर्ड्स CH3C HCH3 CH2 CH2Cl, right? There are 4 different examples four different compound may form in this reaction. So it is very simple method. How can we find different products in this reaction, different products? So these are called how many monohalogenated product, है ना, एक सिंगल हेलोजन से कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं. इस पर कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज थर्ड पार्ट दैट आई वांट टू डिस्कस विद द सब्स्टिट्यूशन हैलोजनेशन रिएक्शंस, है ना, हैलोजनेशन रिएक्शन. हैलोजनेशन के अलावा अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर हैलोजनेशन यू कैन सी द सेम इन सल्फोनेशन, लाइक CH3 CH2 एंड H. इन सल्फोनेशन अगर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड का हम रिएक्शन कराते हैं, सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, तो CH3 CH2 SO3H जुड़ जाता है और साथ में H2 बाहर हो जाता है. ऐसी नाइट्रेशन अगर होता है तो CH3 CH2H और वहाँ पर अगर HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड का हम यूज़ कराते हैं तो इट वुड बी CH3 CH2 और यहाँ पर NO2 बन जाता है और साथ में H2O रिलीज हो जाता है. तो ये सारे रिएक्शन का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही होता है. कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जिससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं. तो यहाँ हीटिंग से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और जो फर्दर रिएक्शन करते हैं, राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑल्सो. सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट. देन द combustion. So it is again very very important reaction because the main use of hydrocarbon is combustion. Either we are talking about the household cooking gases or automobiles, simply, है ना. तो the combustion is most important point. Generally the combustion reaction asked in 2 manners. One is CnH2n plus 2. In that case when O2 is react, it will give N of CO2, yes or no, और H2O भी आपको मिलेगा, that would be N plus 1 because 2N plus 2 is given here, right. So the number of carbon is there. So how many that oxygen is, how can we find the oxygen कितना कंज्यूम होगा वो कैसे पता चलेगा. जैसे एक रिएक्शन हम पूरा लिख लेते हैं तो उससे हम इसको आसानी से बना सकते हैं. लाइक C4H10 हमने लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 4CO2 और यहाँ कितना हो जाएगा 5H2O, yes or no. So simply that's why I have written here N, because इसमें N मतलब कार्बन नंबर हो गया और हाइड्रोजन के लिए नंबर कितना हो गया N plus 1, yes or no, 5 हो गया. ना ऑक्सीजन कितना हो गया तो 8 और 5 13, right. So here it is we can write 3n plus 1 by 2. तो 3n, n की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर दें that would be 13 by 2, yes or no. So 13 by 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 ऑक्सीजन. मतलब हमारे लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 3n
plus 1 by 2, right? Right. So this 3n plus 1 by 2 हम लिख सकते हैं और ये कंप्लीट रिएक्शन इस तरीके से बनता है. बाकी कंबशन रिएक्शन का ये दिस इज कंप्लीट कंबशन. दिस इज व्हाट? कंप्लीट कंबशन when it is converted into CO2 and H2. But sometimes there is incomplete combustion is also there, like with CH4 it is very famous. Limited supply of oxygen is there. In that condition it turn into S plus H2. This is carbon black. यहाँ पर कार्बन ब्लैक यूज बनता है और जो कि बहुत सारे पेंटिंग और अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्पसेस के लिए इसका यूज भी किया जाता है. Okay, so this is an example of incomplete combustion. ये एक example है incomplete combustion का. First is for complete combustion and this is for incomplete combustion, right? Try to write various reactions for combustion, complete combustion specifically for methane, for ethane, for butane, for pentane, right? So आप इस फॉर्मूले की हेल्प से और आप इसे बैलेंस करके इट इज़ वेरी इजी टू राइट द कंबशन इक्वेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. क्या करना है आपको? फॉर्मूला लिखना है, यहाँ O2 लिखना है और फिर जितने कार्बन है उतना CO2 लिख लीजिए, जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ करके H2O लिख दीजिए और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए. सो इट इज़ वेरी इजी. The next important reaction is for alkane is controlled oxidation. There are various ways of oxidation, controlled oxidation of alkane, like you can see here CH4 catalyst. You can आप यहाँ देखें catalyst चेंज होने पर प्रोडक्ट चेंज हो जाता है. This is called selectivity of catalyst. देखिए CH4 plus O2 copper 523 Kelvin 100 atmosphere it will form CH3OH. This is industrial method for preparation of methanol. In the second case, molybdenum oxide is there and will convert CH4 and O2 will convert into formaldehyde, methanol. And the third reaction, manganese acetate is there. Okay, ethane is there. Manganese acetate के presence में will convert into ethanoic acid. So the catalyst in first two case, third case तो different हो गया, obviously compound ही different हो गया. But in first two case, even CH4 के साथ कॉपर एसीटेट का यूज करते हैं. मुझे एग्जैक्टली कैटलिस्ट याद नहीं आ रहा है, बट उसमें भी फॉर्मिक एसिड HCOH बनने का एक रिएक्शन है. सो दीज आर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जनरली नॉर्मल ऑक्सीडेशन एल्केन्स का नहीं होता एक्सेप्ट टर्सरी एल्केन्स जो होते हैं. टर्सरी एल्केन्स में समहाउ ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और CH3 ऐसे टर्सरी एल्केन जिसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है will oxidized by KMnO4 like oxidizing agent and convert into C and O. यहाँ पर OH जुड़ जाता है और CH3 अल्कोहल बना लेते हैं. अदरवाइज नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं देखने को मिलता. कुछ कंट्रोल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अलग बात होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन अलग बात होती है. तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन तो होता है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता एक्सेप्ट टर्सरी अल्कोहल और टर्सरी एल्केन जो है उनका ऑक्सीडेशन देखने को जरूर थोड़ा सा मिलता है. राइट. नेक्स्ट इज दैट एरोमेटाइजेशन. नेक्स्ट रिएक्शन इज एरोमेटाइजेशन. इन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन व्हाट विल हैपन दैट कार्बन 6 कार्बन और 7 कार्बन मॉलिक्यूल 6 कार्बन और 7 कार्बन alkane convert into aromatic compounds by dehydrogenation and cyclization reaction. In this reaction, this is hexane heating in iron tube, heating at 773 Kelvin and almost 300 atmospheric pressure in presence of Al2O3, CO2O3, MO2O3. These are catalysts on heating. That carbon lose one hydrogen and these two carbon combine by forming free radical and convert into C6H6.
and it is called benzene. Similarly, if the 7 carbon is there, अगर यहाँ पर 7 carbon होगा if 7 carbon is there with the same mechanism, will convert into एक ही कंडीशन, सारी कंडीशन एक ही रहेंगी, 7 कार्बन की रिंग नहीं बनेगी, टॉलुइन बन जाएगा. So these reactions, in these reactions, the more important is one is called dehydrogenation. Dehydrogenation मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, एंड साइक्लाइजेशन, रिंग फॉर्म हो रहे हैं. तो डिहाइड्रोजनेशन एंड साइक्लाइजेशन के बाद will convert into aromatic compound, and that's why collectively it is known as aromatization. And very important reaction to convert open chain compound into aromatic compound, specifically benzene. So again it is very important reaction. Now the third is a reaction with steam. This is for preparation of hydrogen, right? Reaction with steam is for preparation of hydrogen. CH4 plus H2O will CH4 plus H2O on here. This is steam. In that case, will convert into CO plus H2, 3H2. CO plus 3H2. It looks like as water gas. This is called gasification reaction, है ना? Gasification reaction कहते हैं. और H2 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इस रिएक्शन में देखने को मिलता है, राइट. सो दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज व्हाट दैट रिएक्शन विथ स्टीम. एंड लास्ट रिएक्शन ऑन इट इज दैट पायरोलाइसिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग, CRACKING. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैकिंग ऑफ पायरोलाइसिस? इट मीन्स एक्चुअली दैट हायर हाइड्रोकार्बन, हायर एल्केन हाइड्रोकार्बन ऑन हीटिंग turn into lower hydrocarbons or alkene, whatever, but in lower hydrocarbons on heating at 773 Kelvin or around, they turn into lower hydrocarbons. So this reaction is called pyrolysis. You can see C6H14 will turn into C6H12 plus H2, C4H8 plus C2H6. There's no आप किसी भी इतने रिएक्शन है इनको याद नहीं रख सकते क्रैकिंग वाले रिएक्शन को. आपको बस इतना याद रखना है कि जो ब्रेकडाउन हुआ है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे यहाँ देखिए 6 कार्बन ओके और 12 और 2 14 हाइड्रोजन, तो ये हमेशा बराबर रहेगा, इसमें कभी भी चेंज देखने को नहीं देखने मिलेगा. सो दीज आर क्रैकिंग रिएक्शन. द क्रैकिंग पायरोलाइसिस मींस टू द ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन ऑन हीटिंग इज कॉल्ड पायरोलाइसिस. जनरली ब्यूटेन वगैरह को आजकल पायरोलाइसिस से मतलब अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, अदरवाइज पायरोलाइसिस से भी एलपीजीज को बनाया जा सकता है, राइट. वन मोर रिएक्शन आई मिस्ड हियर, दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, बट इसके बारे में मैं लास्ट चैप्टर में ही आपको बता चुका हूँ कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर CH कोई हेक्सेन ले लें, CH3 CH2 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 CH3, राइट, और इसको हीट कर दें Al2O3 के साथ. तो हीट करने पर एक्चुअली होता क्या है कि दैट कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सम बॉन्ड्स में ब्रेक डाउन होमोलाइटिकली, राइट, एंड द न्यू मोर स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड. सो यू कैन सी हियर. सो आइसोमर हम जानते हैं स्ट्रेट चेन से ज़्यादा जब आप इसमें होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक होंगे तो जो ज़्यादा स्टेबल कौन से होंगे, जो सेकेंडरी रेडिकल होंगे, टर्सरी रेडिकल होंगे, है ना. तो अगर कोई भी सेकेंडरी नहीं है तो कंपाउंड सेकेंडरी यानी एक ब्रांचिंग आपको देखने को मिल सकती है कंपाउंड में. तो इस तरीके से अगर एक ब्रांचिंग है तो फिर 2 ब्रांचिंग मिल सकती है ना. मान लीजिए अगर हमने इसको हीट कर दिया फर्दर, राइट, अगर मैं इसको फर्दर हीट कर दूं तो क्या हो सकता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू. इसको हीट करने पर CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3 भी मिल सकता है, बराबर. तो एक ब्रांचिंग नहीं है तो 2 ब्रांचिंग मिल सकती है. इस तरह से डिफरेंट ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है. ऐसे रिएक्शंस को आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन is
substitution, these which you must remember. Right? Thank you for today.